shock. Now, what is shock? You can see the picture here. In the picture, we can understand the flow or perfusion means हमारे body में flow और perfusion दोनों same होगा, so will be normal. But if is inadequate, will be not proper, so there will be problem occur. So you can see the picture and diagram. In this patient will be have a less flow, inadequate flow or inadequate perfusion. Means what is meaning of perfusion? What cell require O2 or what require energy will be get proper cell. It's called perfusion. So if anything will be not normal, flow abnormal or perfusion abnormal, it will be converted in the shock. So adequate flow or adequate perfusion will be normal human beings, but in the shock patient, what will be have? They will be have less flow or maybe have less circulation. Less perfusion or less circulation will be have. They lead to hypoperfusion. So this lead to the shock. Now, what is simple definition here? It is an acute medical condition associated with reduced perfusion to body tissue. Means is an acute condition. It's not like will be occur in long lasting. We cannot say कि बहुत time से हुआ था. This condition will be suddenly started, but it's a medical condition. It will be understandable in exam. They ask question which is shock is which this condition, medical or surgical. So remember, it's a medical condition and is a life-threatening condition. With what happens in this condition, with reduce the perfusion of body tissue. What perfusion require? How much will be required perfusion in your body will be not there. So will be have a shock. So in medical condition where the flow is proper but perfusion not proper, also problem, or flow is improper or perfusion not proper, also will be shock. So if the perfusion is not proper, they lead to the shock. There are some stages of the shock. First is the initial stage. Second thing is a compulsive stage. Third is the progressive stage, and last the irreversible stage. So we'll go one by one stage. In initial stage, compulsive stage, progressive stage, and irreversible stage. Now, what is initial stage? The name is suggesting. Name बता रहा है कि is initial, means starting the first time. Decreased cardiac output result in the reduced mean arterial pressure. So in the patient have decreased cardiac output. Now we know in our heart is a important function to give cardiac output. If output is proper, so entire circulation in the body will be proper. But in the shock patient, in the first phase, our cardiac output will be decreased. So because of this thing, mean arterial pressure will be decreased. Now, what is first thing you should know? What is the mean arterial pressure? What is MAP? Is the average pressure throughout the one cardiac output. When cardiac have pumping one time, how much will be have average body require cardiac output will be called mean arterial pressure. So in this initial phase, the cardiac output will be decreased. So will be the initial phase. Next thing, increase heart rate due to the stimulation of the sympathetic nervous system. In our body, all are related somewhere. So if will be have cardiac output will decrease, so body will try to do something. So there will be have increase your heart rate because they stimulate your nervous system of in the sympathetic system, which will be increase your heart rate, decrease your blood pressure, and start the thirst mechanism, pale, cool, moist skin over the face. Now we should need to understand why will be occur. When in our body, हमारी body में जब cardiac output less हो जाएगा, so body will try to do some action. So for that time, body will tell to our brain to do something. So there will be a sympathetic nervous system will be activated, and that will lead to try to increase heart rate. Body say to our heart, please pump fast, so we'll be have more output. Then similar time, brain tell to our blood pressure, decrease the pressure, so we'll be have more flow. And same time our thirst will also increase, so we'll take more water, and body will be pale, cool color, and moist skin also will see in the face. So you see the initial phase, decrease cardiac output will be the first thing, and because of this thing, our body will be stimulate the sympathetic nervous system. Next thing is a compensatory stage. Means we understand now body will try to do something. Body is try to save in initial phase also. Body is doing something reaction. Body try to respond something, but in the compensatory stage, body responding, proper responding, stimulating the sympathetic nervous system, release epinephrine and non-epinephrine to the maintain hemostasis. Yesterday we discussed hemostasis already. In hemostasis is a maintaining environment. What are the body abnormalities is try to maintain. So in the previous stage we discussed, because of the sympathetic nervous system will be stimulated a certain part of the body, like will be training the heart to release
more heart decrease, increasing heart rate, all these things doing this thing. Simultaneously, sympathetic nervous system will be what they're doing. They will affect the release the epinephrine, non-epinephrine. Epinephrine and non-epinephrine is very important thing, which will be try to compel body, try to make body will be relaxed mood, or try to make body proper flow of the there. So proper perfusion and flow and perfusion will be properly maintained. If this is not maintained, then will be have a shock. So by releasing the epinephrine and non-epinephrine, will be try to maintain that. Then peripheral vasoconstriction can occur because this drug, they will be lead to the vasoconstriction, and they'll be stimulate the adrenaline fiber to more blood available, and will be a heart and brain. So because of vasoconstriction, they will flow also increase and try to make perfusion properly. Then this lead to coronary and cerebral artery dilation. Now we know it's affected to the brain, blood and brain. So coronary artery in the heart, so will be, and brain will be in the cerebral artery in the brain. So they have dilation, and because of this thing, there will be beta adrenergic receptor will be released, and they lead to increased cardiac output. See, in the first thing we show to decrease cardiac output. So here in the first thing in initial stage, their body started to active sympathetic system, and they are doing some initial stage. But in the compound stage, body will release epinephrine, non-epinephrine, and these are very important this thing, and they will be do the vasoconstriction. They will be dilated, muscle will be make constricted. So क्या करेंगे? They will be affect our brain and heart. So उसकी वजह से क्या होगा? There will dilation occur. Now dilation in the beta adrenergic blocker, and this because this thing dilation, because dilation, there will be increased cardiac output. So for time being, our cardiac output will be maintained. So the flow and perfusion will be maintained. Now next the progressive stage, when we'll be not doing anything, when a patient already compensation mechanism is done, and we are as a healthcare worker, we are not doing any treatment. So when compensation mechanism become ineffective, will be not usable, not long lasting, and not done treatment, that time will be affected. So impaired perfusion result anaerobic metabolism. Now we should know what is anaerobic metabolism. Anaerobic metabolism, when a body is not getting proper oxygen supply, so body in the absence of oxygen doing metabolism is called anaerobic metabolism. So because these things, patient have a hypoxia. So we should understand body will be have for initial phase, body is try to respond that. After that will be compulsive mechanism where adrenaline non will be reactive that time, and then it's not done. There will be a progressive stage where body will be now compulsive mechanisms fail, is ineffective. So we have an anaerobic metabolism. In the absence of oxygen will be a metabolism. They lead to cellular hypoxia, and they lead to activate renal ischemia. Means they will be affect the renal column. Means renal will be having ischemia. Now what is ischemia? The lack of O2 supply for time being. Is not necrosis. Till now, the renal is not have a death, but because of some reason, because of shock, blood flow is not proper. Because of blood is not proper, cardiac output कम था, तो वो अपने वाइटल ऑर्गन में भी सप्लाई कम करेगा. सो वाइटल ऑर्गन में रीनल भी वाइटल ऑर्गन है, तो वाइटल ऑर्गन में सप्लाई कम करेगा. सो रीनल में क्या हो जाएगा? इस्चेमिया हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस थिंग हमारी बॉडी में क्या रिलीज होगा? रेनिन रिलीज होगा, एंड रेनिन विल बी रिलीज एंजियोटेंसिन. आई होप यू नो द पैथोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में होता है ऐसा, हम आगे पढ़ेंगे हम. Renin will be released angiotensin, angiotensin release aldosterone, and this is because this thing patient have vasoconstriction, so will be increase your blood pressure. So here will be when the patient will be have a what will be have a fail the mechanism of the compound mechanism. That time progressive stage will be increased. So because this thing our renal will be activated. Renal will be activated because of renal not getting auto supply. तो किडनी कुछ न कुछ ट्राई करेगी. So this thing will be activated and will be cause increased blood pressure. After that will be have irreversible stage where the compound mechanism also ineffective and progressive also ineffective. Then this lead to coronary and cerebral tissue perfusion drop. So this lead to organ fail. We all know within a 6 minute our heart require blood, and within 3 minutes our brain require blood, means O2 blood. Will not get, they have a chance of death. So if will be all things not processed, is irreversible, which will be damaged, which are not reversible, which cannot be controlled. हम उसको वापस नहीं कर पाएंगे. So these are the stages will be have in the shock. We discuss initial stage where body is try to react that time. So will be decreased cardiac output, body react at that time. Compound mechanism, that time will be release epinephrine, not epinephrine. Then progressive stage when will be a compound mechanism fail, that time will be body try to damage, खुद की सेल को मार के यूज करेगा. So will be renal ischemia and will be increased BP. Irreversible damage when same thing continue for long lasting, बहुत टाइम तक कंटिन्यू करेगा,
सो वो अपने हार्ट को और ब्रेन को डैमेज कर देगा. सो बी अ चांस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. नाउ दैट टाइप ऑफ शॉक, low blood flow. If you have a low blood flow, we have cardiogenic shock, and one is a hypovolemic shock. We'll discuss one by one. Then you have maldistribution of the blood flow can cause neurogenic shock, anaphylactic shock, and septic shock. Now these are the types will be discussed. Now cardiogenic shock means problem with the cardiac function. Hypovolemic shock means problem with the volume. Septic shock means having infection. Hypodynamic shock, problem with the pulse pressure. Anaphylactic shock, some allergic reaction. And neurogenic shock is because of some nervous system. We'll discuss one by one now. First is a cardiogenic shock. Now what is cardiogenic shock? Already I told you, myocardium. Myocardium क्या है? हार्ट का मसल है. अगर अपने हार्ट के मसल को 6 मिनट तक, we'll say 5 to 6 मिनट ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? There is a chance of death of the heart muscle. So this can lead to atherosclerosis, plaque formation. What is meaning of this thing? Plaque formation in the artery is called atherosclerosis. अगर अपने हार्ट को 6 मिनट तक सप्लाई नहीं होगा, so this will be affect your coronary artery supply, and this can lead to atherosclerosis. That lead to decreased cardiac output. Now what is cardiac output? जितना stroke volume उसका multiply heart rate करोगे उसको बोलेंगे cardiac output. Now what is stroke volume? जितना ब्लड पंप करेगा each heart beat में will be have stroke volume. मतलब जितना हार्ट पंपिंग कर रहा है वन टाइम पे वो आपका हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? जितना हार्ट पंप कर रहा है और जितनी हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट. सो इट्स अ सिंपल ही कांसेप्ट हियर, बट यू शुड अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है. स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. नेक्स्ट थिंग, द हाइपोवोलेमिक शॉक. नाउ सी वी डिस्कस कार्डियोजेनिक शॉक. इन द कार्डियोजेनिक शॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई पेशेंट हैव कार्डियोजेनिक शॉक. Because some problem with the heart muscle, your inflammation of the heart muscle, maybe for myocarditis. Second thing will be have patient any problem with the aorta. Aorta all will be have normal because some aorta pressure is there, aortic supply is less, so patient have aortic stenosis. If problem with having dilation of myocardial muscles, then if patient have congenital heart disease. These are some reason where a patient have a chance of cardiogenic shock. Apart from that, if some patient have any organ failure, any have problem with this thing also can lead to patient cardiogenic shock. So for that what we can do treatment क्या रहेगा हमारा treatment we need to give some autotherapy, some medicine we require, like we can use monad therapy which can try to use, and we can use some drug which can be used like inotropic fluid we can use for the patient, and we need to require some drug like epinephrine drug we also will give the patient if it will be useful for the patient. Now what is next we will be discussing? Next will be a hypovolemic shock. We already told you when less volume, हमारे ब्लड के बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड नॉर्मल होता है, बट उससे कम वॉल्यूम होगा, सो हाइपोवोलेमिक शॉक. ना उसके रीजन क्या क्या है? फर्स्ट विल डिस्कस द हाइपोवोलेमिक मतलब क्या है? बीपी डिक्रीज हो जाए. देयर आर दो चांस है बीपी डिक्रीज होने का, या तो आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाए या आपके बॉडी में सिस्टमेटिक वेस्कुलर प्रॉब्लम कुछ हो जाए, लो वेस्कुलर प्रॉब्लम विल बी हैव. सो देयर टू थिंग कार्डियक कार्डियक दो केस हो सकता है, आपका हार्ट रेट कम हो या स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो. हार्ट रेट मतलब हार्ट का पंपिंग कम हो और जो वॉल्यूम है वो निकल प्रॉपर नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ सब नेक्रोसिस, सब नेरोइंग द आर्टरी आपका थोड़ा ठीक पतला हो. तो उसके रीजन क्या है? देयर टू मेन कॉजेस हाइपोवोलेमिक शॉक के. एक तो ब्लड लॉस हो या नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस हो. ब्लड लॉस जीआई ब्लीडिंग मतलब आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ब्लड ज्यादा निकल रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, या एब्डोमिनल एओर्टिक रप्चर, आपका जो आयोटा है वो रप्चर हो चुका है बिकॉज आयोटा इज द बिगेस्ट आर्टरी. देन ट्रॉमा, व्हेन वी हैव मोर ट्रॉमा, सम ट्रॉमा में भी आर्टरी है और भी बहुत सा ब्लड लॉस हो गया. मे बी हैव पेशेंट ऑफ फीमोरल वेन डैमेज, वे पेशेंट हैव एग्जांपल पेशेंट हैव डैमेज ऑफ the leg injury, patient have injury to the femur, so femur have injury will be a chance of 2 liter blood loss. So that time also we have PPH, this will be a postpartum hemorrhage, will be in the pregnancy time after 24 hours will be more than 500 ml blood loss. That time hemoptysis. So these are the blood loss are causes of the hypovolemic shocks. Then known blood fluid like a 3rd degree burn, vomiting, diarrhea, bile dysfunction, and DKA also will be have. So if patient has diabetic ketoacidosis, so what they will do? They will be affect your increased water absorption and increased output. This also can be affected the patient. So these are the some causes of the hypovolemic shock. But now we should understand the class of shock. There are some classification of shock in the hypovolemic. If patient have blood loss up to 15%, so will be class 1 shock. In the symptom like a pale skin, increased pulse rate, will be a capillary
will be 2 seconds, then will be no change in the blood pressure. Class 2, 15 to 30% of blood loss. Okay, and will be a symptom will be how diastolic BP will be sometime elevated because body is reacting. Now in class 3rd, 30 to 40% blood loss. That type of anxiety, agitation, increased systolic BP, and affect to the patient. Now class 4, more than 40%, very severe condition. That time pulse is 140 BPF will be here, and will be absent radical pulse, and will be affect the respiratory, and BP sometime will be fall down less than 70 also. These are the some shock will be a classification. Now, how will body reacting? What treatment we can give? Now we know name is hypovolemic, so we need to give volume. For that thing, we need to give some fluid. So in the further topic, we'll discuss of fluid, so we can understand. So on that basis, हमको patient को fluid देना पड़ेगा, IV fluid patient को देना पड़ेगा. Maybe the steroid or maybe the colloid fluid we need to give to the patient. Now as a nurse, how we get to know? In exam question आएगा कि is a patient, how we get to hypovolemic shock? So symptom will be have patient decrease cardiac output, so BP will be fall down is a main symptom in this patient. But initially BP up होगा and बाद में इसको BP suddenly fall down होगा. If patient have complained, question asked in exam there, when patient is came with elevated BP and after few minutes BP fall down. So what is shock? Is a hypovolemic shock. कुछ time BP आपका up हो जाएगा, then बाद में BP आपका down हो जाएगा. So it's about hypovolemic shock. Next is a septic shock. Septic shock is a sepsis in the presence of the infection and the activation of the inflammatory in the cascades. Septic means is a infection can occur in any part of the body and body is reacting that time. Sepsis is the persistent and hypotension despite fluid resuscitation and resulting the tissue hypoperfusion. Because of this, any reaction in the body will be some reaction there because of infection. It's called septic shock. Now you can see the picture here because of infection, maybe the bacteria, which we have because of maybe having any fungi, bacteria, any parasite will be have, any virus or other thing will be have like a trauma, burns, when the any pancreas problem or blood-borne infection. This all can lead to the septic shock. Now next is the neurogenic shock. What is neurogenic shock in the patient? Neurogenic shock means it occur by trauma or spinal cord. We know neurogenic means problem with our nervous system. So any problem with the spinal cord which can lead to sudden loss of your autonomic function means suddenly your nervous system is affected is called neurogenic shock. Without stimulation by systematic nervous system, the vessels wall relax and uncontrolled. See, if sympathetic system is it will be effective responding means patient is not neurogenic shock. But आपका sympathetic system effect नहीं कर पा रहा है, समझ जाओ ये आपका neurogenic shock है. इसमें क्या होगा? Suddenly will be a decrease peripheral system. मतलब suddenly आपका will be pulse आपका less हो जाएगा and will be a vasodilation and hypotension. BP will be fall down. See, I told you how to differentiate in the patient hypovolemic shock and neurogenic shock. Hypovolemic shock में पहले BP up होगा फिर down होगा, but neurogenic shock में क्या है? BP suddenly down ही हो जाएगा और pulse भी सीधा कम मिलेगा because आपकी body में nerve supply properly नहीं कर पा रहा है. Then next is the anaphylactic shock. यही इसका मीनिंग क्या है? Hypersensitivity. Anything bite, any mosquito, anything in bite or any medicine जब bite करता है body allergic reaction करता है उसको बोलेंगे anaphylactic shock. Now means ये confuse septic shock में infection कर रहा है और आपका जो anaphylactic shock में कुछ आपको bite कर रहा है और some medicine will be doing this thing. So it will be that time the body is reacting and can cause shock. So it's about the shock. So what discussing shock? We discuss the definition of shock. We discuss about the types of shocks, then stages of the shock, and then we discuss one by one shock meanings. Now next thing will be have pain. Now pain is also important part. Pain is a fifth vital signs. In exam they ask question which is the fifth vital signs. The pain is a fifth vital sign because if pain is there, आपका vital signs will be आपका abnormal रहेगा. Now what is pain? Is an unpleasant sensory or emotional experience associated with the actual potential tissue damage or desired or described in terms such as damage. Here see no one like pain. And no one like a pain is a like unpleasant sensory or emotional experience. We have like we don't like experience of the pain. It's called pain there. But in this what happens, the patient that some tissue damage or something reaction in the body can cause pain. Simple thing here, because of any response like injury or illness causing not liking, you will be feeling is called pain. Now you see the image here.
the physiological of the pain perception, like it will be occur because of transition, transmission, modulation, perception, interpretation, and behavior. These are the some parameter which can lead to the pain. Now, patient have injury. You can see picture here. Patient have injury here, and because of injury, the nerve will be stimulated. The C fiber, A beta fiber, and A delta fiber will be activated and tell our dorsal neuron, and they will be directly affect your brain, and brain tell is something bite. Now, example, just pick your pain in your hand. How will we feel the pain? Because all fiber are activated and tell your brain something pricking to you. So this will be feeling the pain. Now the theories of pain. It's very important thing in the exam. Will ask you what is a pain theory. First thing is the specific theory. They are the specific pain theory where receptor and pathway exist to transmit the pain single to the pain center of the brain. Means आपको जब पेन हो रहा है, जो पिक्चर देखा, पेन आपका गोइंग जा रहा है hand to the brain is a single. So will be have specific theory जहां पर will be transmit pain signal to the pain center to the brain. सीधा आपका signal pain center में जा रहा है, will be have specific theory. Now what is pattern theory? This theory said the existing the rapid and slow conduction pathway which conduct pain signal to the brain throughout the spinal cord. Means the continuous, ये आपके पेशेंट को बॉडी को continuous सप्लाई करेगा कि कुछ न कुछ अनप्लेजेंट थिंग हो रही. सो कोई पेशेंट बोले कि मुझे कंटिन्यूस पेन नहीं हो रहा है, सम टाइम पे पेन होता है, सम टाइम नहीं होता, बिकॉज ऑफ स्लो कंडक्शन. आपके बॉडी में जो नर्वस सप्लाई का कंडक्शन स्लो है, उसकी वजह से आपका पैटर्न थ्योरी अप्लाई हो रहा है, इसलिए आपको पेन थोड़ा सा slowly हो रहा है, मींस नॉट कंटिन्यूस भी है. ओके, बट सिग्नल विल बी नीड टू पास प्रॉपर्ली इन द ब्रेन सेंटर. यहाँ पर क्या है, सिंगल सिग्नल, और सिग्नल विल बी डायरेक्टली अफेक्ट टू द ब्रेन सेंटर. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, द गेट थ्योरी. The gate theory asks exam most of time. The theory emphasizes the patient will be have a known painful signal. In this patient, known painful signal, close the gate painful signal. Means in the patient, when example when we patient को बोलेंगे कि आपको पेन आ रहा है, आप मूवी देखो, आप माइंड डाइवर्ट करो तो आपको पेन नहीं होगा. मींस पेन सिग्नल हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द डाइन. मींस with the emphasized theory, known painful signal can be input when your mindset will be affected. So the prevent pain information by the traveling CNS. means we are busy of making mind को busy करते हैं तो response नहीं जाएगा. So it will be known painful stimulation suppress the perception, जो आपको believe है. Now example, आपको first time IM injection लिया होगा, so you have feeling कि I have pain with the IM injection. So what you will do, आप लोग next time try करोगे, पेन नहीं लो, but आपका परसेप्शन, आप जब आपको पेन दे, हम बातें करें कि आपको पेन नहीं होगा, विल स्पीक समथिंग, सो व्हाट आपका पेन का फीलिंग चला जाएगा. सो दिस विल बी हेल्प द पेशेंट. दिस थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सम नोन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट टेक्निक विद थ्योरी डिस्ट्रैक्शन, एक्यूप्रेशर, क्यूटेनियस स्टिमुलेशन. इससे आपको फील नहीं होगा पेशेंट को पेन हो रहा है. सो दैट्स व्हाई while give injection we'll talk to the patient, diversion the mind. Now this is about the pain. Now we'll theories of the pain. Next is the pain history. Now what need to on the pain history? So will be here O, P, Q, R, S, T, U. In O will ask any other associated symptom apart from the pain. Any other symptom patient will be here like nausea or something, stomach cramp, swelling, or stomach pain. उसको चला कुछ और feeling हो रहा है. Anything other will be have symptom. So we should ask patient. So it's called other symptom. Then P is a palliative or predictive factor, जहाँ पर हम मोबिलिटी चेक करेंगे, टचिंग चेक करेंगे, आज पेशेंट की आप कहाँ पर टच करने पेशेंट को फील होता है, कहाँ पर पेन होता है, लाइक विल बी आस्क्ड द पेशेंट. और आज पेशेंट आपको पेन खाना खाने के बाद हो रहा है, खाने पहले हो रहा है, ऑल दिस विल आस्क्ड द पेशेंट. क्वालिटी ऑफ पेन मींस कितना क्वालिटी, मतलब कैसा फील, लाइक हाउ मच विल बी सीवियरिटी ऑफ द पेन, आपका पेन का लेवल कैसा है, लाइक विल बी आस्क्ड द पेशेंट. Then regionize the patient, क्या आपका पेन रिलेशन कर रहा है to the back side or be something, because in appendicitis patient में क्या होता है, in appendicitis patient का पेन होगा McBurney's point में होगा. Now what is McBurney's point? आपका इलियक फोसा से अम्बिलिकल पॉइंट के बीच को बोलेंगे हम McBurney's point, और यहाँ पर थोड़ा सा पेन आपका McBurney's point पे होगा, बट सेम पेन आपको होगा रिनल कैलकुलस में, जहां आपका पेन रेडिएशन होगा बैक साइड पे. सो आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन पेन क्या होता है. सो वी आस्क इन आर द रीजन एंड रेडिएशन. देन गो फॉर सीवियरिटी, आस्क पेशेंट को आपका पेन लेवल कितना है, 0 to 10. आस्क पेशेंट विल बी से 5, सो यू कैन अंडरस्टैंड पेशेंट को मॉडरेट पेन है.
देन टी टाइमिंग, पेन आपका स्टार्ट कब हुआ था, कंटिन्यूस पेशेंट का पेन है कि आपको दिन में कब कब होता है पेन, विल आस्क द पेशेंट। यू मीन्स अनटुवर्ड्स इफेक्ट एक्टिविटी क्वालिटी ऑफ द लाइफ, बिकॉज ऑफ पेन आपका क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, आपका साइकोलॉजिकल अफेक्ट कर रहा है, आपका स्पेशल बीइंग अफेक्ट कर रहा है, उस वी आस्क द पेशेंट। सो वी नीड टू आस्क द पेन हिस्ट्री, OPQRSTU। देन ट्रांसमिशन, अभी हमने इधर पढ़ा फेस विल डिस्कस टिल नाउ पेन की डिफिनेशन पढ़ी हमने इसकी थ्योरीज पढ़ी, देन उसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी कि हम पेन के अंदर हिस्ट्री क्या पूछेंगे। नाउ हाउ पेन विल ट्रांसमिट, पेन का ट्रांसमिशन कैसे होता है। Synapse is contain three main thing, presynaptic, synaptic, and will be patient have a postsynaptic. So will be understand here is a presynaptic and postsynaptic, उसके बीच को बोलेंगे हम synaptic cleft. So in this patient anything will be affect, न्यूरॉन ट्रांसमीटर है, यहाँ से न्यूरॉन ट्रांसमीटर सप्लाई आगे होता जाएगा। इसी पिक्चर here the presynaptic terminus is the axon, terminus of the presynaptic neurons. Here that the presynaptic neurons release the neurotransmitter which will be are found in the vesicles, और हमारे बॉडी में जो वेसिकल्स के अंदर ये दिख रहे हो, will be see the in vesicles we have some transmitter GABA receptor will be there, so will be in the synaptic membrane में होता है, इसको बोलते हैं प्री बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पोस्ट बोलते हैं। so here by this transmitter will be affect, जो हमारे ट्रांसमीटर हैं वो प्री से पोस्ट में आएंगे और हमारे इंपल्स आगे पास करेंगे। so we can understand कि आपको इंपल्स पास कर रहे हैं। कैसी पिक्चर हियर, हाउ विल बी कम हियर टू हियर। नेक्स्ट थिंग वी शुड नो नर्व कैसे दिखती है, नर्व के अंदर होता है माइलिन शीथ कवर होती है, तो माइलिन शीथ आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारी बॉडी में माइलिन शीथ होगी सो नर्व सप्लाई फास्ट होगी, माइलिन शीथ का काम क्या है, नर्व को फास्ट करना। सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व्स। देन विल वी हैव फील एग्जांपल, विल बी हैव पेन फीलिंग हियर, सो हाउ विल फील, बिकॉज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व, आपका प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में आपके न्यूरोट्रांसमीटर गाबा वगैरह हुए, सो आपको पेन का फील हुआ। जैसे पिक्चर वंस अगेन, लाइक हाउ विल फ्रॉम प्री shift in the post, the synaptic cleft that narrow the intracellular space between the neurons and neurotransmitter cross the synaptic cleft and bind with a specific receptor and postsynaptic neurons. This will lead to inhibit postsynaptic neurons. So you can see picture, यहाँ पर हमारा neurons transmitter थे, यहाँ से निकल के यहाँ पर जो receptor है हमारे, we see the receptor is there, यहाँ पर आके bind कर जाएंगे and bind होके हमारे पास आगे supply करेंगे। So we will feel the pain and we understand the you know, pain feeling. So we once again revise how will we have seen the picture here. It will be a presynaptic and postsynaptic. So here will be in the vesicles will be a neurotransmitter, जो ट्रांसमीटर सप्लाई क्या करेंगे, will be supply जो गाबा वगैरह है अपने आगे सप्लाई करेंगे, will be go to our cleft split, will be like will be affect our neurons, and then will be go to our postsynaptic. In postsynaptic will be bind with the receptor, will bind with receptor, and will be after binding we feel some sensation, will be a pain. So this is about the transmission. Now we'll see the pain classification on the patient duration, patient का duration of pain, अगर उसको सडनली हो रहा है तो एक्यूट पेन बोलेंगे, और लॉन्ग लास्टिंग है उसको बोलेंगे क्रोनिक पेन। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, नॉन सेप्टिक पेन एंड also nociceptive pain and non-nociceptive pain. Nociceptive pain may be a somatic and visceral, and nociceptive pain will be a neuropathic and sympathetic pain. Now the pain scale we have 0 to 10, like till the 2 will be a mild, till the 5 will be a moderate, and more than 6 to 7 will be a severe, and like will be a kind count. So the pain level. So how to count pain assessment will be a 0 to 10 rating scale we use, like maybe a face rating or maybe visual rating or maybe sometime analog rating also will be used, or question rating also there. So we can ask the patient pain level because हर पेशेंट में पेन लेवल थोड़ा अलग अलग होगा। सो ऑन दैट विद द पेन असेसमेंट, जितना पेशेंट का पेन होगा उस पर हम डिसाइड करेंगे क्या ट्रीटमेंट देना है, एंड वी जस्टिफाई कि पेशेंट का पेन कौन सा एक्यूट है कि क्रॉनिक है। उसके बेस पे हम पेशेंट को NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, और सम टाइम उसको ऑपियोइड एनाल्जेसिक भी देना पड़ेगा, लाइक मॉर्फिन आल्सो इज देयर, एंड सीवियर और एक्यूट पेन पे हम पेशेंट को देते हैं ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स विल बी गिवन। सो इज अबाउट द पेन। हमने पेन में क्या पढ़ा, फर्स्ट वी डिस्कस पेन का डेफिनेशन पढ़ा हमने, देन पेन की थ्योरी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ा हमने, देन वी डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ द पेन, ट्रांसमिशंस, देन टाइप्स ऑफ पेन, देन नेक्स्ट विल डिस्कस द स्केल्स ऑफ द पेन। सो ये हमारा हो गया पेन। सो वी डिस्कस पेन एंड
Next we will discuss about fluid and electrolytes. Fluid and electrolytes, very important topic in exam. What time exam पूछा था fluid electrolytes. So what is introduction to fluid? Our body, entire body में 70% जो है बॉडी वाटर से बनी हुई है. So फ्लूइड का बना हुआ है. फ्लूइड इज 70% इन वाटर. अगर आपका वेट 100 kg है तो आपका 70 kg तो आपका फ्लूइड ही हो गया. ओके, उसमें आपका इंट्रासेलुलर के अंदर 40% है और एक्स्ट्रासेलुलर के अंदर 55%. इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर 40% फ्लूइड है और सेल के बाहर 55. सो हमारा टोटल कितना हो गया 55 प्लस 40. सो रिमेनिंग है बॉडी, रिमेनिंग है वो दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर है. देन वाटर रिटेंशन विल बी इन एडिमा. अगर हमारे बॉडी में लीक ऑफ वाटर, बॉडी का आपका वाटर लीक होता है उसको बोलेंगे एडिमा. इसलिए हम पेशेंट को दिखता है कि समथिंग विल बी वाटर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ज्यादा आ चुका है. इंट्रा से अगर आपका फ्लूइड एक्स्ट्रा में आ रहा है इन योर बॉडी, द फ्लूइड इज शिफ्टिंग इंट्रा टू एक्स्ट्रा. तो समझ जाओ कि पेशेंट को एडिमा है. नाउ व्हाट इज वार्निंग साइन? ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसका बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है. So we'll be understand this will be symptom in the patient. Now first we see the terminology. Diffusion. What is diffusion here? Molecule move to the from high to low. आपके जो भी molecules हैं बॉडी के वो high to low सप्लाई कर रहे हैं. एग्जाम्पल आपका जो भी बॉडी फ्लूइड है वो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेशर की वजह से आपके हाई प्रेशर से लो में जा रहा है. एग्जाम्पल इन एक रूम में आपका एसी है जहां पर लो टेम्परेचर है और इमेजिन हाई एसी में लो टेम्परेचर है आपका रूम के अंदर और बाहर हाई टेम्परेचर है. सो हाई से अगर वो लो में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन. ओके, और आपका जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका डिफ्यूजन भी बढ़ेगा. बिकॉज हमने क्या बोला, हाई प्रेशर है वो लो में फ्लो कर रहा है तो जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन भी बढ़ेगा. क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर पेशेंट में एक पेशेंट में डिफ्यूजन ऑलरेडी हो रहा है और टेम्परेचर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो डिफ्यूजन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंजेस और नॉन ऑफ द अबव. सो इट अंडरस्टैंड आपके पेशेंट के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन आपका बढ़ेगा बिकॉज वो हाई टू लो है. नाउ नेक्स्ट ऑस्मोसिस, वाटर मूवमेंट बिटवीन द कंपार्टमेंट, सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरा विद हाई सोल्यूबल कंसिस्टेंट. हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर मूवमेंट जो हो रही है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूवमेंट होगा, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस. मेम्ब्रेन का नाम क्या है सब? इट विल बी अ पेरी परमानेंट मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेशन करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. उसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है व्हिच विल सेपरेट योर मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन का अंदर जो सॉल्यूशन का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आपको जो आपके बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, जो आपके वाटर फ्लो को मेंटेन करती है बोथ साइड. सो आपके बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एग्जाम में आ सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किससे होता है? सो रिमेंबर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एंड ऑस्मोसिस क्या है, आपका वाटर मूवमेंट एक कंपार्टमेंट से डिफरेंट कंपार्टमेंट मतलब इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर जो मूवमेंट हो रहा है वो ऑस्मोसिस से होता है. सो एडिमा का मेन प्रॉब्लम हमारा ऑस्मोसिस ही है. You can see picture, fluid shifting one part to other part. Okay, here you can see not shifting here but shifting one part to other part is a osmosis. यहाँ पर क्या है, normal, ये हमारा normal है. नेक्स्ट थिंग, रेगुलेशन ऑफ द ब्लोरी फ्लूइड. आपकी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है वो रेगुलेट किस पे करता है? सो ऑब्वियसली टू थिंग पे करेगा, आपके इनटेक पे और आपके आउटपुट पे. जितना इनटेक और आउटपुट है उस पर डिपेंड करेगा. सो इनटेक डिपेंड किस पे करता है? आपके थर्स्ट मैकेनिज्म पे. और थर्स्ट मैकेनिज्म मींस आप जितना पानी कितना पीते हो जितना आपका हाइपोथैलेमस बोलता है. हाइपोथैलेमस क्यों बोलता है? बिकॉज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, प्रेजेंट म्यूकोसा और एंजियोटेंसिन, यह तीन फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी को बोलता है कि ड्रिंक वाटर, ज्यादा पानी पियो. सो अगर आपका साइकोलॉजिकल, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आपका थर्स्ट मैकेनिज्म विल बी इंक्रीज डिक्रीज सब डिपेंड करेगा. और आपका समथिंग प्रॉब्लम विद द फ्रेजेंट म्यूकोसा. सो बिकॉज दिस थिंग आपकी बॉडी में म्यूकोसा अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका थर्स्ट मैकेनिज्म अफेक्ट करेगा. सो थर्स्ट मैकेनिज्म विल बी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इंक्रीज प्लाज्मा और डिक्रीज ब्लड फ्लो. आपकी बॉडी में थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिव कब होता है? जब प्लाज्मा बढ़ जाए और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तब आपके बॉडी में इंटेक मस्ट थर्स्ट मैकेनिज्म विल बी इंक्रीज. सो आपका फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंडेबल, थर्स्ट मैकेनिज्म विल बी एक्टिवेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ब्रेन विल बी इंपॉर्टेंट टू अफेक्ट द थर्स्ट मैकेनिज्म. सो रिमेंबर हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट, आउटपुट. आउटपुट विल बी कहां से होता है? किडनी, लंग्स, स्किन एंड जीआई सिस्टम.
हम 150 लीटर्स प्लाज्मा ईच डे विल बी देयर और 1500 ml यूनिट भी निकलता है। नॉर्मल कितना होता है 1 लीटर पर केजी विल बी रिक्वायर्ड पर आवरली, इट विल बी नॉर्मल रेशियो। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कितना व्हाट इज नॉर्मल फिल्ट्रेशन, so 1 liter per kg will be required per hourly. Okay, remember per hourly. So now how will be regulation? Just take example, patient take 2600 ml urine pressure, 2600 ml patient take intake, 2600 ml patient took intake and 2600 will be output. So oral fluid will take 1200 ml, food will take 1000 ml and metal will be 400 ml. तो ये हमारा क्या हो गया intake हो गया, सेम थिंग उतना ही आउटपुट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है वो आपका बॉडी का रेगुलेशन प्रॉपर है, जितना इनपुट है उतना ही प्रॉपर आउटपुट होना चाहिए। सो यूरिन से 1500 ml निकला, स्टूल से 150 ml निकला, लंग से 500 ml निकला एंड स्वेटिंग से 450 ml निकला। अगर ये आपका मेंटेन है प्रॉपर है सो यू आर नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बट अगर समथिंग अब नॉर्मल अगर आपका 2000 आता है सो यू अंडरस्टैंड कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके बॉडी के आउटपुट में आ रहा। सो बाय दिस थिंग वी हैव an idea what problem in the patient. Now we'll discuss next things फ्लूइड इम्बैलेंस। हम डिस्कस फ्लूइड की बात ही कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्लूइड इम्बैलेंस मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। फर्स्ट क्या है हमारा ECFVE मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। आपके एक्स्ट्रा सेल के अंदर मींस ब्लड वेसल के अंदर नहीं, ब्लड के बाहर के वेसल जो भी हैं उसमें फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है। और वो क्यों बढ़ेगा, इंक्रीज द फ्लूइड रिटेंशन इन द इंट्रासेल्युलर और इंट्रास्टेलर स्पेस। मतलब आपके क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपके जो इंट्रासेल्युलर के अंदर है वो फ्लूइड बढ़ चुका है इसलिए एक्स्ट्रा में शिफ्ट हो गया। सी इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आपके एक्स्ट्रासेल्युलर के अंदर फ्लूइड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपके जो इंट्रासेल्युलर के अंदर वो फ्लूइड रिटेंशन मतलब फ्लूइड शिफ्टिंग बढ़ चुका है इसलिए आपके अंदर फ्लूइड बिहेव। क्यों होता है, क्योंकि सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन सेम है, जितना सोडियम है उतना ही वाटर है, इसकी वजह से आपके अंदर एक्स्ट्रा सेल के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ चुका है। उसकी रीजन क्या है, मे बी आपका हार्ट और किडनी फेल हो चुकी हो, आपके पेशेंट को आपने ज्यादा फ्लूइड दे दिया हो, आईवी फ्लूइड ज्यादा दिया हो, और पेशेंट हैव अ डिसकंडीशन लीवर सिरोसिस। ओके, so mainly three thing will be can lead to extra cellular fluid volume excess। आपके एक्स्ट्रा सेल के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ चुका है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी आपको फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या देंगे डायरेटिक्स। कौन सा डायरेटिक देंगे हम, loop diuretic will be have name is a loop diuretic is very commonly used, is a drug is a Lasix drug। furosemide drug will give the patient to the in the patient which will be very important in the patient and उसका dose क्या है 40 mg will be give the patient। okay, so the drug will be used in the patient। apart from that we give the potassium sparing diuretic is a spironolactone example, is an example of drugs। and patient को बोलेंगे हम low sodium because अगर आपके पेशेंट के अंदर सोडियम बढ़ गया तो क्या होगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन भी सेम है, जितना सोडियम है उतना वाटर का अब्जॉर्प्शन भी करेगा, सो फ्लूइड वापस अंदर जमा हो जाएगा। हम पेशेंट को बोलेंगे आप सोल्ट कम लो तो जमा कम होगा। सो इज आर द फर्स्ट थिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इम्बैलेंस मींस आपका इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन बिकॉज ऑफ इंट्रासेलुलर और इंटरस्पेस की होता है। उसके कॉजेस ये हैं हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, एक्सेसिव आईवी फ्लूइड एंड लीवर सिरोसिस। उसके लिए हमको ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हमको डायरेटिक्स देनी पड़ेगी, लूप डायरेटिक और मे बी स्पारिंग डायरेटिक। एंड डाइट में पेशेंट को बोलना पड़ेगा टेक लो सोडियम डाइट। नेक्स्ट थिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शिफ्ट। आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मींस आपका जो फ्लूइड है इंट्रा की जगह एक्स्ट्रा में वो फ्लूइड कहीं शिफ्ट हो गया है, इसको बोलेंगे हम थर्ड स्पेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इन एग्जाम आस्क यू व्हाट इज थर्ड स्पेसिंग मींस एक्स्ट्रा फ्लूइड शिफ्टिंग समवेयर नॉट इंट्रा। आप एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आपका शिफ्ट कहां हो रहा है, मे बी इंट्रा में शिफ्ट हो रहा है और मे बी इंटरस्पेस शिफ्ट हो रहा है। अगर शिफ्ट हो रहा है उसको बोलेंगे हम थर्ड स्पेसिंग। उसका रीजन क्या है, आपका इंक्रीज द कैपिलरी परमिटिविटी, आपके बॉडी में जो ऑस्मोसिस है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो चुका है। क्रश इंजरी और प्रोटीन लॉस, ये पेशेंट में प्रोटीन लॉस मोर कहां होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पेशेंट बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, कि पेशेंट में प्रोटीन यूरिया इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारा प्रोटीन यूरिया होता ही है। So in patient have more protein loss, in this patient have a chance of a third spacing, so that the causes। treatment क्या है, we need to give large isotonic fluid, हमको बहुत ही ज्यादा पेशेंट को isotonic fluid देना पड़ेगा। now isotonic fluid will discuss in further। so इस पेशेंट में क्योंकि फ्लूइड शिफ्ट ज्यादा हो गया इंट्रावेस्कुलर, सो अगर हम वेस्कुलर के अंदर ज्यादा फ्लूइड दे देंगे तो वापस सप्लाई कर देगा एक्स्ट्रा के अंदर। ओके, एंड अगर पेशेंट के अंदर प्रोटीन लॉस हो चुका है
तो हमको पेशेंट को एल्बुमिन देना पड़ेगा, बिकॉज हमारा प्रोटीन को लॉस को कम अप करने के लिए, प्रोटीन लॉस को प्रॉपर करने के लिए हमको एल्बुमिन देना पड़ता है. सो एग्जाम आ सकता है if patient have protein loss, so what are the treatment can give? So remember, albumin give to the patient, which can be effective to the patient. And how much fluid will give? कितना फ्लूइड दोगे पेशेंट को, कितना इंटेक दोगे, जितना आपका आउटपुट है. अगर पेशेंट का आउटपुट 300 है, पेशेंट का आउटपुट 300 है, तो पेशेंट को उसके मल्टीप्लाई 3 करके आपको देना पड़ेगा. सो यू टू गिव 900 इनपुट. सो जितना आपका आउटपुट है उसका 3 मल्टीप्लाई आपको देना पड़ेगा. क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है, कितना आप इनपुट दोगे. सो मल्टीप्लाई 3 विल बी गिवन टू द पेशेंट. नेक्स्ट थिंग, इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस. अभी हमने क्या पढ़ा इसके पहले, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस. नेक्स्ट पढ़ा हमने एक्स्ट्रा फ्लूइड शिफ्ट. अब हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर के अंदर, मतलब सेल के अंदर. अगर आपके सेल के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए, वो क्यों होता है? बिकॉज आपका सोडियम बढ़ चुका है और आपका एक्स्ट्रा सेल में आपका फ्लूइड बढ़ चुका है. हमने बात की थी एक्स्ट्रा के अंदर, वहां पर क्या होता है, इंट्रा के बढ़ जाता है, इसलिए होता है. यहाँ पर सेम थिंग, आपके अगर एक्स्ट्रा का ब्लड बढ़ जाए, फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा इंट्रा के अंदर. तो सोडियम बढ़ जाए तो, और आपका एक्स्ट्रा में फ्लूइड बढ़ जाए तो पेशेंट के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड विल बी एक्सेस. नाउ उसके रीजन क्या है? पेशेंट टेकिंग मोर सोडियम. अगर पेशेंट टेबल सॉल्ट, हम बोलते हैं सॉल्ट इज वेरी वेरी डेंजर, ओके, इज अ वाइट poison for the patient. What is white poison? Is a salt. Why? Because if we taking more salt, आप पेशेंट को हाइपरटेंशन कर सकता है, और हाइपरटेंशन भी मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड विल बी इंक्रीज. सो patient taking table salt can problem. Next thing, blood transfusion. If patient taking blood transfusion, blood supply ज़्यादा means is not everything is a simple. We are giving more blood transfusion to the patient. This also can lead to the shifting fluid and can be cause intracellular fluid volume. नेक्स्ट थिंग, डायग्नोस्टिक कॉन्ट्रास्ट डाई. लाइक पेशेंट में एमआरआई, सीटी स्कैन, उसमें हम डाई यूज करते हैं. बिकॉज क्या होता है, हमको उस टाइम पे पेशेंट को देखना होता है कि उसके एवरी पार्ट ऑफ बॉडी के सारे पार्ट वो फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. उस टाइम पेशेंट को कुछ डाई देनी पड़ती है. सो डाई से अगर पाएगा कि प्रॉपर सप्लाई. सो दिस आर द रीजन. सो अगर हमारी बॉडी में हमने पेशेंट के सोडियम इंटेक बढ़ चुका है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को दे रहे हैं हम, और कुछ डाई यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रा यूज कर रहे हैं, will be that time पेशेंट को चांस है इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के. सो ट्रीटमेंट क्या है? डायरेटिक. सो हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर से वो डाई निकाल देंगे, ब्लड निकाल देंगे और सोडियम इंटेक निकाल देंगे. सो वो नॉर्मल हो सकता है. अवॉइड फ्लूइड थेरेपी. हम पेशेंट को फ्लूइड नहीं देंगे, बिकॉज ऑलरेडी पता है फ्लूइड ज्यादा है, उसकी वजह से इंट्रा बढ़ गया है, एंड हम कंटिन्यूअस वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेशेंट. इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सेस क्यों होता है? बिकॉज सोडियम इंटेक बढ़ गया है, ब्लड सप्लाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया है और डाई कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, तो उसको हम रिमूव करेंगे इन द पेशेंट और विद गिविंग सम ड्रग व्हिच विल रिमूव. सो हमने पढ़ा दो डिस कंडीशन के अंदर, आपके बॉडी में जब भी फ्लूइड बढ़ जाए, एक्स्ट्रा में बढ़े या इंट्रा में बढ़े, आपका ट्रीटमेंट तो क्या है? डायरेटिक्स. ओके, पर एग्जाम क्वेश्चन ये नहीं आता. क्वेश्चन क्या आता है कि इन विच कंडीशन विल नॉट गिव द फ्लूइड, तो कौन सा है आपका? इंट्रासेल्युलर के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. अगर आपके इंट्रा सेल के अंदर फ्लूइड का डेफिसिट हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मे बी हाइपोनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन. पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया हो गया है और डिहाइड्रेशन हो गया. नाउ व्हाट इज नॉर्मल विल बी हाइपर, will be normally hyper will be 135 to 145 ml will be required. And now at dehydration, if patient have like diarrhea, vomiting, and will be a long lasting, so will be here. So if burn patient, I hope आप सबको पता होगा, बर्न पेशेंट के अंदर हमको फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ता है. अगर फ्लूइड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो विल बी पेशेंट हैव अ फ्लूइड लॉस. सो इन दिस पेशेंट burn is the main cause. Burn also be not major main cause, but burn also one cause of the patient have a intracellular fluid volume deficit. Next thing, vomiting, diarrhea for long lasting. बहुत टाइप से पेशेंट को वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है, तो आपको क्या करेगा? इंट्रासेल्युलर में फ्लूइड को डेफिसिट कर देगा. थर्ड क्या है? डायरेटिक्स. अभी तक हमने पढ़ा डायरेटिक्स ट्रीटमेंट पढ़ा था न, बट यहाँ पर रहे हम डायरेटिक कॉज भी हो सकता है. अगर आपने पेशेंट को ज्यादा डोज दे दिया है तो क्या होगा? वो किडनी से ज्यादा वॉल्यूम निकाल देगा. सो क्या होगा? पेशेंट है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. उसका ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड थेरेपी. यू टू नीड टू गिव ओनली वन थिंग. आपको जितना फ्लूइड लॉस हुआ है उसके हिसाब डिसाइड करना है, आपको कोलोइड फ्लूइड देना है, किस्टोइड देना है, आप पेशेंट को फ्लूइड ही देना पड़ेगा. सो दिस आर द ट्रीटमेंट द पेशेंट.
So हमने क्या पढ़ा इन दिस कंडीशन, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस बिकॉज ऑफ विल बी फ्लूइड शिफ्टिंग आपका इंट्रा में ज्यादा हो रहा है इसलिए। फिर हमने पढ़ा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड शिफ्ट, आपका फ्लूइड शिफ्ट हो गया एक्स्ट्रा से इंटरवेस्कुलर इंटरस्पेस में शिफ्ट हो गया है, उसके रीजन हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब अभी आपके इंट्रासेल में फ्लूइड ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ चुका है और सोडियम भी आपका ज्यादा है, बिकॉज जब सोडियम बढ़ेगा तो आपके बॉडी में वाटर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज सोडियम और वाटर आपके सेम है, सोडियम वाटर वाला सेम स्ट्रक्चर, जो भी सोडियम बढ़ाएगा तो अपने वाटर को भी बढ़ाएगा। तो हमने कोर्स पढ़े, उसका ट्रीटमेंट में डायरेक्टिक्स पढ़ा हमने। देन लास्ट हमने पढ़ा इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इसका मेन कॉजेस दे आर 3 विल बी है, बर्न, वोमिटिंग, डायरिया एंड डायरेक्टिक्स। और ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड थेरेपी। नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होता है हमने पढ़ा, वी आर डिस्कसिंग द नाउ फ्लूइड अवेलेबल इन द our medical area। medical team में हमारे what fluid यूज करते हैं हम? there are two things we discussing, colloid and crystalloids, colloid and crystalloid। now what is colloid and crystalloid, पहले हम बात करेंगे। colloid fluid क्या है? प्लांट ओरिजिन है, colloid fluid प्लांट से लेते हैं और crystalloid को हम बनाते हैं सिंथेटिक। ओके, नाउ बनाना इजी है और प्लांट से ना डिफिकल्ट, बिकॉज प्लांट आर वेरी कॉस्टली, सो इट विल बी नॉट इजीली अवेलेबल। और आपका जो क्रिस्टलोइड है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है, बिकॉज जितना चाहे हम बना सकते हैं। प्लांट का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है कंपेयर टू द क्रिस्टलोइड, तो इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, मोलिकुलर वेट का इंपॉर्टेंट क्या है? इमेजिन एक फ्लूइड का मोलिकुलर वेट 5 जा रहे और इसका 5 जा रहे हैं, इट विल बी 5000 मोलिकुलर वेट, और इसका कितना है? 50 है। सो क्रिस्टलोइड का कितना है? 50। सो आपके पेशेंट को फ्लूइड लॉस कितना है? बहुत ज्यादा हो चुका है, तो 50 दोगे तो 50 विल भी जल्दी से किडनी से बाहर निकल जाएगा। बट 5 जा रहे हैं तो उसका वेट ज्यादा है, तो बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगा। सो आपके बॉडी में मोलिकुलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपके फ्लूइड का मोलिकुलर जितना ज्यादा होगा उतने टाइम तक बॉडी में ज्यादा रहेगा। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पेशेंट का क्या है। पेशेंट को हाइपोवोलेमिया सीवियर लेवल पे है तो आपको पेशेंट को कोलेट देना पड़ेगा। पेशेंट का हाइपोवोलेमिया माइल्ड लेवल पे है तो आपको लो मोलिकुलर वेट चल जाएगा, तो आप क्रिस्टलोइड दे सकते हो। ओके, देन we discuss availability। next the high vascular permeability, जो आपका ब्लड है वो हाई वेस्कुलर permeability, मतलब सब वेसल को क्रॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज का फिल्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू द क्रिस्टलोइड। यहाँ पर क्या है? लो वेस्कुलर permeability। ये कैन नॉट पास टू प्लाज्मा, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा पतला है तो आपकी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर पाएगा। दिस रिक्वायर टू स्टोर रेफ्रिजरेटर, इसमें अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है, बट दिस विल बी रिक्वायर्ड इन द स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर। इसको हमको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए, इसको हम रूम टेम्परेचर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, कोलाइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, बट क्रिस्टलोइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो द मेन 7 डिफरेंस विल बी हियर। कोलाइड और क्रिस्टलोइड के अंदर क्या डिफरेंस है? जो आपको पेशेंट को अगर बहुत ही ज्यादा बीपी लो हो चुका है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, तो आपको कोलाइड देना पड़ेगा। और पेशेंट के अंदर ओनली बीपी बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो आपको क्रिस्टलोइड देना पड़ेगा। सेम थिंग बर्न पेशेंट में, पेशेंट का बर्न ज्यादा सीवियर हो चुका है तो आपको देना पड़ेगा कोलोइड, बट अगर स्मॉल बर्न है तो आप क्रिस्टलोइड से चला सकते हो। नाउ वी डिस्कस टू थिंग हियर, कोलोइड क्रिस्टलोइड। अब क्रिस्टलोइड के 3 पार्ट है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। नाउ इसका मीनिंग क्या है? ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर, आपकी बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पर डिसाइड करता है कितना आपकी बॉडी में कौन सा फ्लूइड का मीनिंग क्या होगा। नाउ हाइपोटोनिक मींस आपका ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें कम है, ओके, इंट्रा से एक्स्ट्रा में कम है। वो कौन सा फ्लूइड है? 50% डेक्सट्रोज, 0.45 NS आपका नॉर्मल सलाइन। जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक हो गए। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उसको बोलेंगे नॉर्मल सलाइन, DNS एंड RL रिंगल लैक्टेट। दिस आर द आइसोटोनिक प्रेशर भी सेम, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसको बोलेंगे आइसोटोनिक। जिसका आइसोटोनिक ज्यादा है उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक, मींस 10 डेक्सट्रोज और 3% NaCl will be used in the patient. So that example, in example ask question कि normal saline क्या है? So remember is an isotonic fluid. Okay, so this is we discuss in the patient about the fluid. So what we discuss in the fluid? In fluid we discuss first thing about the description. What is the fluid? Will be there in the body, 70% body will be a fluid, intra to extra. Then we discuss about edema, we discuss about certain terminology like diffusion, osmosis. फिर हमने बात की फ्लूइड डिफ्यूजन की बात की, जितना इनटेक करेंगे और आउटपुट करेंगे इस पर डिपेंड करता है। फिर हमने बात किया इनटेक आउटपुट का एग्जांपल लिया हमने, अगर 2016 में इनटेक है उतना आउटपुट होना चाहिए, बट किस किस लेवल पे होगा हमने वो डिस्कस किया हमने।
फिर हमने बात की फ्लूइड इम्बैलेंस की, में फर्स्ट पढ़ा हमने एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस एक्सेस, देन हमने बात किया थर्ड स्पेसिंग, हमने बात किया नेक्स्ट विल बी इंटरनल फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, देन इंटरनल फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, देन हमने फ्लूइड की क्लासिफिकेशन पढ़ा कोलोइड एंड क्रिस्टलोइड्स, देन वी डिस्कस द डिफरेंस विद द बिटवीन द कोलोइड एंड क्रिस्टलोइड्स. Now we are going to the next topic, acid base imbalance. It's very important topic also, acid base imbalance. We already discussed hemostasis, so we no need to more discuss the maintain environment. So maintain constant internal environment will be used is a hemostasis. हमारी बॉडी में जो बफर सिस्टम का पार्ट प्ले करता है वो मेंटेन पीएच के लिए करता है. उसके लिए मेन थिंग दो हैं, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट एसिड. दोनों का रेशियो कितना है, इसका अगर हम बात करें सिस्टम के अंदर कि बफर सिस्टम के अंदर कितना रेशियो होगा कार्बोनिक का और कितना नॉन कार्बोनिक का, सो 1:20 रेशियो विल बी हियर. नाउ व्हाट इज 1:20 रेशियो मींस हियर इन द पेशेंट आपका 1 होना चाहिए कार्बोनिक एसिड तो 20 होना चाहिए बाइकार्बोनेट एसिड. सो H2CO विल बी ऑलवेज लेस, सो देन आपका बॉडी में बफर सिस्टम मेंटेन रहेगा. नाउ व्हाट इज एसिड बेस इंबैलेंस, पीएच और H आयन, जो हमारा H आयन है बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, और पीएच. नाउ व्हाट इज नॉर्मल पीएच कितना होता है ब्लड के अंदर, 7.35 to 45, 3.45 to 45. (7.35 to 7.45 will be normal pH in the blood or pressure. Okay. सो अगर पीएच आपका इंक्रीज होगा तो आपका एच आयन कम हो जाएगा, पीएच डिक्रीज होगा तो एच आयन बढ़ जाएगा. ओके. नाउ हमारी बॉडी जी में ये इंपॉर्टेंट है एबीजी, बिकॉज हम पेशेंट के अंदर जब भी चेक करते हैं पीएच और जब चेक करना है उसको एबीजी के थ्रू चेक करते हैं. तो एबीजी के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट उसके पहले हमको करना पड़ता है एलन टेस्ट. एलन टेस्ट क्या है, हम पहले क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी को ब्लॉक करेंगे, रेडियल आर्टरी को ब्लॉक करेंगे और मेक अ फिस्ट, एक फिस्ट बना के देखेंगे, मुट्ठी बंद कर देखेंगे कि आपने रेडियल ब्लॉक किया तो अल्नार आर्टरी प्रॉपर है कि नहीं. फिर आप अल्नार आर्टरी को ब्लॉक करोगे और चेक करोगे आप रेडियल प्रॉपर है कि नहीं, तो उससे आप पता चलेगा कि आपका बॉडी में दोनों आर्टरी प्रॉपर चल रही हैं, तो आप ब्लड सैंपल रेडियल और अल्नार आर्टरी से ले सकते हो. तो एलन टेस्ट विल बी यूज्ड टू गो फॉर एबीजी. नेक्स्ट थिंग, नाउ we'll discuss one by one what is respiratory acidosis. Respiratory acidosis क्या होता है, जब आपका बॉडी में पीएच कम हो जाएगा, ओके, तब पेशेंट के अंदर एसिडोसिस होगा. रिमेंबर पीएच डिक्रीज तो विल बी एसिडोसिस. पीएच और आपका CO2 दोनों उल्टे हैं, दोनों अपोजिट है, दोनों एनिमी है. जब पीएच डिक्रीज होगा तो CO2 बढ़ जाएगा. सो देयर विल बी अ चांसेस इन द पेशेंट. तो इमेजिन आपका पीएच डिक्रीज है तो मोस्ट ऑफ टाइम में CO2 आपका डिक्रीज होना ही है, बिकॉज दोनों अपोजिट ही हैं. CO2 बढ़ जाएगा. तो कब होता है, जब आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक अस्थमा, सीओपीडी पेशेंट होना पड़ा, सीओपीडी, एआरडीएस, पल्मोनी एम्फाइसीमा. इन दिस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में O2 और CO2 नहीं हो रहे तो CO2 बढ़ जाएगा. तो उस टाइम पे CO2 बढ़ रहा है, उसके साथ पीएच कम हो जाएगा, में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. उसके अलावा आपके बॉडी में सीएनएस डिप्रेशन, आपका सेंट्रल सिस्टम डिप्रेस हो चुका है बिकॉज ऑफ मे बी एसिडिटी की वजह से, अल्कोहल की वजह से, और भी बिकॉज ऑफ सम एपीओ एनर्जीज की वजह से आपका बॉडी में डिक्रीज हो चुका है. दिस आर द रीजन. नेक्स्ट थिंग, हाइपोवेंटिलेशन. आपके बॉडी में जो वेंटिलेशन जो है प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी चांसेस हैं कि रेस्पिरेटरी हो सकता है. ट्रीटमेंट क्या है, आपका जो भी पॉजिटिव एजेंट है, मतलब आपके अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, तो इसको ट्रीट करो और साथ में पेशेंट को O2 थेरेपी दो, क्योंकि हमने बोला CO2 और पीएच दोनों अपोजिट हैं. अगर आपने O2 बढ़ा दिया तो CO2 कम हो जाएगा, तो आपका एसिडोसिस भी करेक्शन हो जाएगा. आई होप क्लियर. पीएच घटेगा, CO2 बढ़ेगा तो हम O2 थेरेपी दे देंगे, CO2 घट जाएगा तो पीएच बढ़ जाएगा, तो बॉडी में मेंटेन हो जाएगा. पर साथ में क्यों हुआ है, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट, उसको भी आपको क्योर करना पड़ेगा. अदरवाइज कुछ टाइम के लिए आपका पीएच मेंटेन कर पाएगा बट लॉन्ग लास्टिंग के लिए मेंटेन नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट थिंग इज द रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस. एल्कोलोसिस मतलब बॉडी में पीएच बढ़ चुका है, पीएच बढ़ चुका है और मतलब मींस CO2 विल बी इंक्रीज. ओके, CO2 विल बी सॉरी डिक्रीज विल बी हियर द पेशेंट. क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन में फीवर और जब बीएमआर और O2 डिमांड बढ़ जाए. अगर फीवर में आपका क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाता है, तो अगर आपकी बॉडी में O2 बढ़ जाए, hence CO2 will be decrease. CO2 डिक्रीज होगा,
CO2 will decrease. I make wrong parameter here. When CO2 will decrease तो क्या होगा, pH आपका बढ़ जाएगा. So pH बढ़ेगा तो क्या है, alkalosis. So CO2 decrease कब होता है, when you have hyperventilation. आपने पेशेंट की बॉडी में ज्यादा O2 डाल दिया है तो उस टाइम पे चांस है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस हो. और फीवर में क्या होगा, बॉडी VAMR आपका बढ़ेगा तो O2 डिमांड बढ़ जाएगा. सो उस टाइम पे भी अल्कोलिसिस होने के चांसेस है. और प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में देयर आर 2 पीपल, मदर एंड चाइल्ड, तो दोनों को डिमांड ज्यादा चाहिए, दोनों को ज्यादा डिमांड चाहिए. सो उस टाइम पे हैव अ चांसेस कि आपका O2 डिमांड बढ़ जाए और CO2 कम हो जाए. देन ट्रीटमेंट क्या है, फेस कवर विद अ पेपर बैग. हमको क्या करना है, पेशेंट के अंदर CO2 बढ़ाना है. नाउ पेशेंट को क्या बोलेंगे हम, आपका जो मास्क फेस है वो पेपर बैग से कवर कर लो या फिर प्लास्टिक से कवर कर लो, तो जितना CO2 निकल रहा है उसको वापस डाल देंगे. मतलब हम पेशेंट को CO2 थेरेपी देंगे. बस हमारे पास आज तक हमने CO2 थेरेपी करके वर्ड सुना नहीं है. मतलब CO2 थेरेपी नहीं है तो क्या करेंगे, फेस को कवर कर देंगे पेपर बैग से, जितना CO2 निकल रहा है उसको वापस हम अंदर डाल देंगे. नाउ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अभी हमारा CO2 और O2 से कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारा प्रॉब्लम आएगा SCO3 से. नॉन एसिड कितना होता है 22 26. यहाँ पे pH और SCO3 दोनों अपोजिट है. pH घटेगा SCO3 बढ़ेगा. सो आपका अगर pH कम है मतलब एसिडोसिस हमको पता ही है. और अब अगर आपका SCO3 बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक हो गया. सो ये कब होता है, डायबिटिक पेशेंट में और डायबिटिक कीटोसिस में होता है. इन द पेशेंट व्हेन विल बी हैव अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, व्हेन पेशेंट विल बी हैव अ डायबिटिस पेशेंट. ओके. एंड DK में क्या होता है, what is DK is a complication of diabetes, diabetic ketoacidosis. जब आपकी बॉडी में डायबिटीज हो जाए, मतलब ब्लड डायबिटीज हो जाए, मतलब क्या, ब्लड शुगर बढ़ जाए ब्लड वेसल के अंदर. ओके. तो उसकी वजह से इसको बोलते हैं डायबिटीज. बट लॉन्ग लास्टिंग, अगर आपकी बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग के तरह, लॉन्ग लास्टिंग में बॉडी में ब्लड बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, तो वो एक टाइम पे बॉडी को रिएक्ट करती है और बॉडी अपने खुद की सेल को मारती है. जब सेल को मारती है तो बॉडी में से कीटोन बॉडी निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. और कीटोन बॉडी क्या करता है, एसिडोसिस करता है. सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विल बी हैव. और ये क्यों होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो फैट है उसको डैमेज कर दिए, फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से कीटोन बॉडी रिलीज होते हैं. और किडनी फेल. ओके. दैट टाइम आल्सो आपके चांस है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर. माल न्यूट्रिशन, एस्पिरिन ड्रग इज आल्सो देयर. सो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, हम पेशेंट को SCO3 दे देंगे. सो ऐसे देने से क्या होगा, विल बी हैव चांसेस to relieve the metabolic acidosis. Next thing, आपका metabolic alkalosis जब pH बढ़ जाए और एसिडिटी कम हो जाए, कब होता है, जब हम GI सेक्शनिंग करेंगे, वोमिटिंग करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन. दैट टाइम ये है उसके कॉजेस. आपने सेक्शनिंग ज्यादा कर दिया हो, वोमिटिंग कर दिया हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो. ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सी नाउ विल बी कंफ्यूजिंग. कॉज भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस अगर आपने ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए हैं तब चांसेस है पेशेंट के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है. बट अगर पेशेंट के अंदर GI सक्शनिंग और वोमिटिंग हो रही है, दैट टाइम वी कैन गिव ट्रीटमेंट. ओके. और आपने अगर लॉन्ग टाइम तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है तो भी आपके पेशेंट में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कर सकता है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द पेशेंट. सो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट थिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, metabolic acidosis and metabolic alkalosis. So this is about our acid base imbalance. So this is about the topic. Thank you everyone.